Good morning students. How are you beta? I hope you all are good and healthy at home. Students, today we will discuss summary of chapter 5 from our book Snapshots. The name of the chapter is Mother's Day. Students, do you know when Mother's Day is celebrated? I will tell you. Mother's Day is celebrated on second Sunday of my month. Yes, this chapter is written by J.B. Priestley. J.B. Priestley's full name is John Wynton Priestley. He was born on 13 September 1894. He died on 14 August 1984. He was an English novelist, playwright, screenwriter and commentator. Let's take an introduction of the play. This play is one-act play. This is a satire on the modern society. As you can see, in the modern society, the mother who does all the household costs is not getting good treatment in most of the families. She always lives in the house, she always does all the work for every member in the family, but nobody never pay attention towards her. And here the writer focus on this thing. In this play he describes plight of a mother, and Mrs. Pearson is such kind of a lady. She is a timid and weak woman. She always run after every member of her family, and in her family no one takes care of her. One day she comes to know about Mrs. Fitzgerald. Mrs. Fitzgerald, who is neighbor and friend of Mrs. Pearson, advised her to take care of herself and make her family in a right way, so that she can be the boss of her family. Mrs. Pearson wanted so, but she replied that she is unable to treat her family very strictly, and in this way Mrs. Fitzgerald helped her a lot to get her position and to make her family right. Let's discuss the characters of this play. There are 5 main characters. Number 1, Mrs. Annie Pearson. Annie Pearson कौन है? मदर इन दिस प्ले. मदर का रोल प्ले कर रही है इस प्ले में. शी इज वाइफ ऑफ जॉर्ज पियर्सन. शी इज ए लविंग वाइफ एंड मदर. शी इज सिंपल हार्टेड, जेंटल, टिमिड एंड वीक. टिमिड मीन्स कहते हैं कोवर्ड, डरपोक. नेक्स्ट, जॉर्ज पियर्सन. ही इज हस्बैंड ऑफ मिसेस पियर्सन. ही इज अबाउट 50 years old. ही इज पॉम्पस. पॉम्पस मीन्स कहते हैं एरोगेंट, थोड़ा शो ऑफ करने वाला इंसान. He neglects his wife. Next, Doris. She is daughter of George Pearson. She is about 20 years old. She is a spoiled girl. Spoiled girl means क्या? बिगड़ी हुई. She is into an affair with Charlie Spence. Number 4, Cyril. He is son of George Pearson. He is a spoiled child also. Next, Mrs. Fitzgerald. She is a neighbor and friend of Mrs. Pearson. She is bold, talented, strong, liberated and dominating woman. She knows some tricks. She lives life on her own terms. She drinks and smokes also. Let us discuss the summary of this play. When the play starts, we find Mrs. Pearson or Mrs. Fitzgerald. Both are sitting in the drawing room, in the living room of Mrs. Pearson's house. It is a part of a big building and it is time of afternoon. दोपहर का समय है. Mrs. Pearson, Mrs. Fitzgerald दोनों बैठी हुई हैं ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में, बैठक रूम में, जो कि मिसिस पियर्सन का है. एक अलग थलग सा है, एक पार्ट है बड़े घर का. और यहाँ पर दोनों बैठी हुई बातें कर रही हैं. मिसिस फिट्जरेल्ड हैं, वो कार्ड्स में पत्तों से
मिसेस पियर्सन का भाग्य देख रही है, फ्यूचर है वो बता रही है। अब मिसेस फिट्जजेराल्ड कार्ड्स देखते हुए बताती हैं कि तुम्हारा फ्यूचर अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। जैसा तुम चाहोगी वैसा फ्यूचर तुम्हारा हो सकता है, तुम्हारे हाथ में है, तुम अपने फ्यूचर को अच्छा बनाओ या बुरा बनाओ। मिसेस पियर्सन खुश होती है और कहती है, हाँ तुम सही कह रही हो और मुझे बड़ी खुशी है और बहुत बहुत तुम्हारा धन्यवाद। खुशी इस बात की है कि मेरे पड़ोस में ही एक अच्छा भविष्य बताने वाली लेडी रहती है, ऐसा वो उसको बोलती है। फिर दोनों बातें करने लगती हैं, कार्ड्स खेलने लग जाती है, ताश खेलने लग जाती है। अब मिसेस फिट्जजेराल्ड को मिसेस पियर्सन की एक्चुअल कंडीशन उसके घर की पता चल जाती है। क्या कि उसके जो बच्चे हैं, उसका जो पति है, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। वह उन सभी के लिए जी तोड़ काम करती है, मेहनत करती है, पूरा दिन उनके लिए भागती दौड़ती रहती है, फिर भी उन लोगों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। वो उसके साथ एक नौकर की तरह ही व्यवहार करते हैं। अब मिसेस फिट्जजेराल्ड है वो मिसेस पियर्सन को कहती है कि तुम अपने घर की मालकिन बनो, बॉस बनो, ऐसे क्यों रहती हो? तुम उन सबको अपने अकॉर्डिंग काम करवाओ, अपने हाथ की पपेट बनाओ, कठपुतली बनाओ, अपने अकॉर्डिंग उनको चलाओ। मिसेस पियर्सन कहते हैं, कई बार मैं सोचती हूँ, मैं उनको हिंट भी देती हूँ, परंतु इसका उनके ऊपर कोई असर नहीं होता है और ये काम बड़ा मुश्किल है करने में। कहने में ही आसान लगता है कि मैं परिवार को सुधार सकती हूँ। अब मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती है, तुम थोड़ी कठोर होकर के उनके साथ व्यवहार करो, अपनी पोजीशन बनाओ, अपना स्टैंड लो और तुम ऐसा कर पाओगी। परंतु मिसेस पियर्सन है जो कि डरती हैं, टिमिड हैं, इसलिए वो कह देती कि नहीं, ये सब मैं नहीं कर सकती, मैं अपने परिवार, अपने पति, अपने ही बच्चों के साथ बुरा व्यवहार कैसे कर सकती हूँ। तो मिसेस फिट्जजेराल्ड वो समझाती है मिसेस पियर्सन को कि ऐसा करके तुम अपने पति और बच्चों को और बिगाड़ रही हो, उनके फ्यूचर को बर्बाद कर रही हो, ऐसा करने में उनकी कोई भलाई नहीं है, वो और अधिक बर्बाद होते जा रहे हैं। तो मिसेस पियर्सन यह कहती कि हाँ ठीक है, मैं भी चाहती हूँ कि वो अच्छे बने, अच्छे सुधरे, अच्छा घर का माहौल हो, परंतु ये सब मेरे बस का नहीं है, मैं कर नहीं पाऊंगी, आप कितना भी कहें, आपके कहने का कोई फायदा नहीं है। तो मिसेस फिट्जजेराल्ड उसको फिर मोटिवेट करती है कि तुम अपनी फैमिली को सही रास्ते पर लाने के लिए कर सकती हो। फिर मिसेस एन पियर्सन है वो देखती है कि टाइम है वो थोड़ा ज्यादा हो गया है, वो कहती है, हे भगवान बहुत अधिक लेट हो गया है, वो कभी भी आते ही होंगे और सभी को दोबारा से वापस बाहर जाने की जल्दी होगी और अब तक मैंने कुछ भी तैयार नहीं किया है। मिसेस फिट्जजेराल्ड उसको हाथ पकड़ के बैठा लेती है, बोलती है कि बैठिए, आज उनको इंतजार करने दो, आज आप कुछ भी नहीं करेंगे उनके लिए, उनको भी पता लगने दो कि काम ना होने पर कैसा महसूस होता है। अब मिसेस पियर्सन डरी हुई है, फिर फिट्जजेराल्ड है, यदि ये काम तुम मेरे ऊपर छोड़ो, मेरे को करने दो तो मैं कर सकती हूँ। तो कहती है, पियर्सन बोलती है कि नहीं, कैसे कर सकती हो, मेरा परिवार तुम्हें अपने घर में स्वीकार ही नहीं करेगा, वो तुम्हारी बात ही नहीं मानेंगे, वो तुम्हारी बात सुनेंगे ही नहीं। तो फिट्जजेराल्ड कहते हैं, मैंने कब कहा, तुम समझी नहीं जो मैंने कहा, मैंने कब कहा कि मैं इसी रूप में ये काम करूंगी, हम दोनों अपने पर्सनैलिटीज को चेंज कर लेंगे और उसके बाद मैं ये काम करूंगी। अब मिसेस पियर्सन है वो कहती है, क्या पर्सनैलिटी चेंज हो सकती है? तो मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती है कि हाँ, मेरे पास एक ट्रिक है, एक जादू है, मैं जानती हूँ, जब मैं पूर्व में रहती थी तो ये ट्रिक मैंने वहां पर सीखी थी कि जो पर्सनैलिटीज हैं वो एक दूसरे की चेंज की जा सकती है और आज भी मुझे बड़े अच्छे से याद है कैसे इनको चेंज किया जाता है। और फिट्जजेराल्ड अब मिसेस पियर्सन का हाथ अपने हाथ में पकड़ लेती है और उनको बोलती है कि कुछ क्षण के लिए आपको बिल्कुल शांत रहना है और मेरी आंखों में आंखें डाल करके देखिए। अब दोनों टेबल के ऊपर हाथ पकड़े हुए एक दूसरे का बैठी हैं और मिसेस फिट्जजेराल्ड हैं वो कुछ ट्रिक्स बोलती हैं, कुछ मंत्र बोलती हैं, आश टाटा डम लम, आश टाटा लम डम, आश टाटा डम लम डोना, इस तरह से बोलते हुए उनकी पर्सनैलिटी जो चेंज हो जाती है, आपस में एक दूसरे की पर्सनैलिटीज बदल गई है, व्यक्तित्व बदल गए हैं और उनको थोड़ी वीकनेस लगती है। अब मिसेस पियर्सन देखती है अपने शरीर को ऊपर से नीचे तक और वो देखती है कि वो कैसी बन गई है, अब मिसेस फिट्जजेराल्ड के जैसी बन गई है। वो काफी घबरा जाती है, डर जाती है, कहती है अब क्या होगा और ऐसा कब तक रहेगा। मिसेस फिट्जजेराल्ड उनको बताती है कि जब भी हम चाहेंगे तो हम वापस में अपनी पर्सनैलिटीज को चेंज कर सकते हैं, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, वो तो और भी आसान है। तो मिसेस पियर्सन बड़ी उतावली होकर के कहती है कि अभी कर दीजिए, अभी अपनी पर्सनैलिटीज वापस चेंज कर लीजिए।
मुझे नहीं रहना है ऐसे। तो फिट्जरल्ड कहती है हाँ हम करेंगे, हम अपने शरीर को बदलेंगे, परंतु जिस पर्पज से, जिस उद्देश्य से, कौन सा उद्देश्य है कि परिवार को सुधारने का उद्देश्य है, वो पूरा होने तक हम ऐसे ही रहेंगे। और जब तक मैं यहाँ पर रह करके तुम्हारी जगह काम करती हूँ, तुम मेरे घर पर चली जाओ। मिसेस पियर्सन कुछ सोचती है और फिर फिट्जरल्ड को कहती है कि हाँ यही ठीक रहेगा, और वह वहां से निकल जाती है फिट्जरल्ड के घर जाने के लिए, जो कि पियर्सन, अब पर्सनैलिटी किसकी उसके अंदर, फिट्जरल्ड की है, वो वहां से चली जाती है और फिट्जरल्ड की पर्सनैलिटी पियर्सन की बॉडी में वहीं पर रह जाती है। जो सिगरेट पहले से मिसेस फिट्जरल्ड पी रही थी, वो सिगरेट वो पीने लगती है। सिगरेट खत्म हो करके वो अपने दूसरी सिगरेट जला लेती है, दूसरी सिगरेट पीती है। उसके बाद जो ताश के पत्ते थे, कार्ड्स थे, उनको खेलने के लिए टेबल पर लगाती है और खेलना शुरू करती है। तभी डोरिस, जो कि डॉटर है मिसेस पियर्सन की, वो आ जाती है। और डोरिस दिखने में सुंदर है, यदि वह बिगड़ी हुई नहीं होती तो बहुत ही अच्छी लड़की है। डोरिस आती है, बड़ी जल्दी में है, अपनी माँ को बिना देखे ही बोलती है कि माँ क्या मेरी जो येलो सिल्क की ड्रेस है वो तैयार है, क्योंकि आज शाम को मुझे उस ड्रेस को पहनना है, क्या उसको आपने आयरन कर दिया है, इस्त्री कर दी है। तो मदर उसकी तरफ देखे बगैर ही बोलती है कि मैं नहीं जानती कौन सी ड्रेस, तुम अपने आप इस्त्री कर लीजिए। तो अब लड़की माँ की तरफ देखती है और पाती है कि माँ है मिसेस पियर्सन, वो सिगरेट स्मोक कर रही है। अब डोरिस को बड़ा सरप्राइज होता है, क्योंकि उसने कभी भी पहले अपनी माँ को ऐसे सिगरेट स्मोकिंग करते हुए नहीं देखा था। और फिर वो अपनी माँ को देखती है, पूछती है कि क्या हो रहा है ये सब। तो मिसेस पियर्सन कहती है कि क्या हो रहा है, क्या मतलब है। कहती है आप सिगरेट पी रही है। तो कहती है क्यों, कहाँ पे कानून बना हुआ है कि मैं सिगरेट नहीं पी सकती, इसमें गलत क्या है, जो सब कर सकते हैं वो मैं भी कर सकती हूँ। मिसेस पियर्सन ऐसे बोलती है। फिर डोरिस कहती है मुझे मेरी ड्रेस तैयार चाहिए। मिसेस पियर्सन कहती है कि वो अपने आप इस्त्री हो जाएगी, मैं तो करने वाली हूँ नहीं, अपने आप खुद ही ड्रेस हो जाएगी इस्त्री। तो डोरिस को थोड़ा गुस्सा आता है, वो कहती है कि आज मुझे चार्ली स्पेंस के साथ, जो कि उसका बॉयफ्रेंड है, उसके साथ शाम को जाना है और वो ड्रेस मुझे तैयार चाहिए। तो मिसेस पियर्सन स्पष्ट मना कर देती है कि या तो खुद हो जाएगी या तुम खुद कर लीजिए, मैं इस्त्री नहीं करने वाली हूँ। फिर डोरिस है, वो देखती है कि चाय का टाइम था और चाय वहां पर नहीं थी टेबल पर। तो डोरिस पूछती है कि क्या आज चाय किचन में ही पीनी होगी। तो मिसेस पियर्सन कहती है कि जहां तुम्हारा मन करे वहां पी लीजिए, मैं तो अपनी चाय पहले ही पी चुकी हूँ। तो डोरिस को गुस्सा आता है, कहती है इस बात का क्या मतलब हुआ। मिसेस पियर्सन कहती है कि क्या मतलब, कुछ भी मतलब नहीं है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा करो। अब फिर अपनी बेटी को बताती है कि जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है चार्ली स्पेंस है, वो एक तो हाफ विटेड है, कम बुद्धि वाला है, दूसरा बकटीथ है। बकटीथ मीन्स क्या है, उसके दांत बड़े बड़े हैं। और यदि मैं तुम्हारी उम्र की होती, तुम्हारी जगह होती या बॉयफ्रेंड बनाती, तो चार्ली स्पेंस को कभी भी अपने बॉयफ्रेंड के रूप में स्वीकार नहीं करती, कोई अच्छा सा लड़का मैं इस काम के लिए ढूंढती। अब क्योंकि डोरिस चार्ली स्पेंस को पसंद करती है, इसलिए उसको बुरा लगता है उसकी माँ के मुंह से ये सब सुन के, चार्ली स्पेंस की बुराई सुन के, और उसकी आंखों में लगभग आंसू आ जाते हैं, वो वहां से चली जाती है। अभी थोड़ी देर में ही जो डोरिस का भाई है सिरिल वहां पर एंटर करता है और वो पूछता है अपनी माँ से, माँ क्या चाय तैयार है। तो मिसेस पियर्सन कहती है कि कोई चाय तैयार नहीं है। तो कहता है कि क्यों, मैं 8 घंटे काम करके आया हूँ, मैं इतनी मेहनत करता हूँ और आपने चाय भी तैयार नहीं रखी है। तो मिसेस पियर्सन कहती है कि हाँ, तुम 8 घंटे काम करते हो, वीक में 40 आवर्स आप काम करते हो, 2 डेज का आप लीव लेते हो, छुट्टी लेते हो, आप रेस्ट करते हो और जब मन चाहे बाहर चले जाते हो। और यदि तुम्हारी संस्था तुम्हारे अकॉर्डिंग काम ना करे तो तुम यूनियन का सहारा लेते हो। आज से मैं भी ऐसा ही करूंगी, सभी इस घर में सभी वीक में 40 आवर्स ही काम करेंगे। हाँ, मैं थोड़ा इतना तुम्हारी हेल्प कर दूंगी कि जो 2 डेज छुट्टी के होंगे उसमें मैं तुम्हारे लिए बेड तैयार कर दूंगी, तुम्हारे लिए कुछ खाना बना दूंगी, परंतु इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। अब फिर से सिरिल बोलता है, मुझे भूख लगी है, आप मुझे चाय देंगे या मुझे खुद ही कुछ लेना पड़ेगा। अब मिसेस पियर्सन कहती है कि खुद ही ले लीजिए, मैं तुम्हें कुछ भी देने वाली नहीं हूँ। अब डोरिस फिर से वापस आ जाती है, जो कि जिसकी आंखें रोने की वजह से बिल्कुल लाल हो गई है, उदास नजर आ रही है, जिसने येलो कलर की ड्रेस है वो डाल ली है। अब
डोरिस और सिरिल आपस में एक दूसरे की तरफ देखते हैं। सिरिल पूछता है माँ की तबीयत तो खराब नहीं है, आज कैसा बिहेव कर रही है, क्या कर रही है, स्मोकिंग कर रही है, पहली बार ऐसे करते हुए देखा है। दोनों डिस्कस करते हैं और मिसिस पियर्सन है वो डोरिस और सिरिल से पूछती है क्या कुछ स्टाउट पड़ी है। स्टाउट मीन्स क्या, बियर। तो सिरिल बोलता है कि हाँ 1-2 बोतल पड़ी हैं। अब मिसिस पियर्सन किचन में चली जाती है बियर लेने के लिए और दोनों बहन भाई आपस में बातें करते हैं, खुशफुसाहट करते हैं कि क्या हो रहा है, ये कैसे हो गया। तो डोरिस कहती है शायद माँ का कहीं सर में चोट लगी है, उसकी वजह से ये ऐसा बिहेव कर रही है। और पहले तो मैं सोच रही थी शायद मेरे से कोई गलती हो गई इसलिए उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है, परंतु अब वो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही कर रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको चोट लगी है, उसका सिर कहीं टकरा गया है। इस तरह से बातें करते हैं और जब मिसिस पियर्सन है वो किचन में से बियर की बोतल ले आती है और बियर पीना शुरू कर देती है। दोनों बच्चे देख करके बड़ी सरप्राइज हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। अब मदर है वो उनको स्पष्ट बता देती है कि मैं 40 हार्स ही काम करूंगी वीक में और जब मेरा मन करेगा वो खाऊंगी, जो मेरा मन करेगा वो बनाऊंगी, और यदि मेरा मन कभी करेगा बाहर जाने का घूमने के लिए तो मैं बाहर भी चली जाऊंगी। अब डोरिस कहती किसके साथ जाओगी, कौन जाएगा आपके साथ बाहर घूमने। तो मिसिस पियर्सन कहती है कि मैं खुद चली जाऊंगी, मैं अपने आप ढूंढ लूंगी साथ जाने वाला, तुम्हें इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं काफी समझदार हूँ, तुमसे तो ज्यादा बुद्धिमान हूँ और समझदार हूँ कि मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, मुझे बाहर जाने में किसी की जरूरत नहीं है। इस तरह से बातें करते रहते हैं, दोनों बच्चे बड़े उदास हो जाते हैं और मिसिस पियर्सन है वो स्मोकिंग कर रही है और अब साथ में बियर भी पी रही है। अब बच्चे सोच रहे हैं कि अब हमारे फादर जॉर्ज पियर्सन जब आएंगे तो क्या होगा, मदर ने हमारे साथ तो ऐसा व्यवहार किया, यदि फादर के साथ भी ऐसा किया तो उस टाइम क्या होगा। अब टाइम होता है जॉर्ज पियर्सन का घर आने का और वो वापिस आते हैं, वो देखते हैं कि बियर पी जा रही है, स्मोकिंग की जा रही है और फिर वो सीधा ये बोलती है कि आज मुझे चाय नहीं पीनी है, मुझे चाय नहीं पीनी है क्योंकि मेरी चाय मेरा नाश्ता क्लब में तैयार है, आज मुझे जल्दी वहां पर जाना है। इस तरह से वो बोलता है। फिर मिसेस पियर्सन कहते हैं मैंने तो चाय बनाई नहीं थी, आप कौन सी चाय की बात कर रहे हो। अब जॉर्ज पियर्सन को गुस्सा आ जाता है कि इसने मेरे लिए चाय तैयार क्यों नहीं की। फिर वो बोलती है देखो कैसा इंसान है, जो चाय इसको नहीं पीनी थी उसी चाय के लिए अब ये गुस्सा कर रहे हैं। और वो उसे बता देती है कि जो क्लब के सदस्य हैं वो उसकी पीठ पीछे उसके बारे में बुराई करते हैं, उसको ओम्पी पोम्पी बोलते हैं, पोम्पी ओम्पी पियर्सन उसको कहते हैं, कहते कि बहुत ही धीमे चलने वाला इंसान है, बहुत ही मोटा इंसान है और ये दिखावा करने वाला इंसान है। इस तरह से जो क्लब के सदस्य है उसकी पीठ पीछे बुराई करते हैं। ये बात मिसिस पियर्सन है वो अपने हस्बैंड जॉर्ज पियर्सन को बता देती है। अब जॉर्ज को विश्वास नहीं होता इस बात के ऊपर कि वो जो क्लब के मेंबर्स हैं वो मेरे पीछे से ऐसा मजाक उड़ाते हैं। अब वो सिरिल को बुलाता है और सिरिल से पूछता है सिरिल क्या वास्तव में ऐसा है, क्या जो क्लब के मेंबर्स है वो ऐसा कहते हैं, ऐसा करते हैं। तो सिरिल हाँ में जवाब देता है। तो मिस्टर पियर्सन को, जॉर्ज पियर्सन को बहुत बुरा लगता है, उसे बहुत बुरा लगता है कि ये क्या हो रहा है। अब सिरिल है वो भी अपनी माँ को बोलता है कि माँ तुमने ये सही नहीं किया, पिता को सच्चाई बता करके, आपको जो क्लब की सच्चाई थी वो पिताजी को बिल्कुल भी नहीं बतानी चाहिए थी। अब उनका मूड सैड हो गया है, वो बहुत उदास हो गए हैं, बहुत परेशान हो गए हैं और ये आपने सही नहीं किया। अब मिसेस पियर्सन कहती है कि क्या सही क्या गलत, मैंने जो सच्चाई थी वो बताइए। अब सभी देख रहे हैं क्या हो रहा है घर में, तीनों मेंबर्स हैं वो परेशान हो जाते हैं, फादर भी और दोनों बच्चे भी काफी परेशान हो जाते हैं माँ की स्थिति को देख करके। उसी दौरान जो फिट्जरैल्ड, जो कि एक्चुअल में कौन थी, पियर्सन, फिट्जरैल्ड के घर पर गई हुई थी, वो वापस आ जाती है और वो देखती है अपने परिवार के सदस्यों की इतनी दयनीय स्थिति कि सभी बहुत उदास हैं, तीनों के तीनों बहुत बुरे हो रखे हैं, बुरी हालत में हैं। इसलिए वो मिसिस फिट्जरैल्ड को, जो कि पियर्सन की बॉडी में है, उसको बोलती है कि तुम ये सही नहीं कर रही हो, मेरे परिवार के साथ इतना कठोर व्यवहार मत करो, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो फिट्जरैल्ड, जो कि पियर्सन बनी हुई है, वो कहती है कि मेरे को जो काम कर रही हो करने दो, तुम कुछ मत बोलो, थोड़ी देर के लिए चुप रहो, ये लोग रास्ते पर आ रहे हैं, ये सुधर रहे हैं, यदि तुम बीच में बोलोगी तो बात गड़बड़ हो जाएगी, हमने जो एफर्ट्स किए वो सारे पानी में मिल जाएंगे। इस तरह से धीरे धीरे बातें करती हैं और फिर से फैमिली को डांटती है कि तुम कभी परिवार के साथ टाइम नहीं बिताते हो, मेरी तरफ ध्यान नहीं देते हो
और ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तीनों सदस्य अब थोड़ा बहुत नॉर्मल होते हैं, सोचते हैं कि हाँ ये सही कह रही है। और फिर जो फिट्जरैल्ड है वो फैमिली मेंबर्स को थोड़ी देर के लिए बाहर जाने के लिए कहती है कि तुम हम दोनों को, फिट्जरैल्ड और पियर्सन को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो रूम में। तीनों बाहर चले जाते हैं, फादर भी और दोनों बच्चे भी रूम से बाहर चले जाते हैं। अब मिसेस पियर्सन और फिट्जरैल्ड फिर से अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करती है। वही एक दूसरे का हाथ पकड़ती है, वही मंत्र बोलती है, अष्टटा लम डम अष्टटा डम लम बोना। इस तरह से मंत्र बोलते हुए वो अपने शरीर को वापस ग्रहण कर लेती हैं और पर्सनैलिटी में आ जाती हैं। अब परिवार के सदस्यों को अंदर बुलाया जाता है और फिट्जरैल्ड बड़े धीरे धीरे पियर्सन को कहती है कि ये लोग कुछ सुधर रहे हैं, इतने जो प्रयास किए हैं उनकी तरफ ध्यान देना, तुम इनको सच्चाई मत बता देना कि हमने ऐसे हमारे जो पर्सनैलिटी है उसको चेंज किया था और उस वजह से ये हुआ है। अगर तुमने इनको सच्चाई बता दी, ये एक्सप्लेन कर दिया तो सारा करा कराया मिट जाएगा, इसलिए कोई फायदा नहीं है ऐसा करने का। अब तीनों बाहर डिस्कस करके आते हैं कि कुछ क्या समाधान है, क्या सॉल्यूशन है इस चीज का। और अब जो माँ है, पियर्सन है, वो कहती है कि मैं बताती हूँ अब हमें क्या करना है। पहले हम सभी परिवार के सदस्य मिलकर के रमी खेलेंगे। रमी क्या होता है? ताश का खेल होता है। रमी खेलेंगे और फिर बच्चे खाना बनाएंगे। जब मैं अपने पति के साथ बैठ करके कुछ बातें करूंगी, उस दौरान बच्चे दोनों खाना बनाएंगे। अब जॉर्ज पियर्सन है वो फटाफट इस बात के लिए सहमत हो जाता है, कहता है कि हाँ मैं पूरी तरह से एग्री हूँ ऐसा करने के लिए। मीन्स अब वो तैयार हो जाता है अपना टाइम अपने घर पर अपने वाइफ के साथ बिताने के लिए। अब से पहले क्या करता था, क्लब में चला जाता था, वाइफ की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था, उससे कोई भी बात शेयर नहीं करता था। अब उसे पता चल गया कि बाहरी दुनिया कैसी है, जो क्लब के सदस्य हैं वो कैसे उसका मजाक उड़ाते हैं, तो वह सोच करके अपनी वाइफ की बात से एग्री हो जाता है कि हाँ ठीक है, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, हम घर पर ही रमी खेलेंगे सभी मिलकर के। तीनों के तीनों घर पर रुकने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब तक तीनों का क्या रूटीन होता था, घर में आते थे, जो चाहिए वो लिया, जो खाना था वो खाया, जिसकी जरूरत थी वो लिया, फिर बाहर चले जाते थे। दिन रात उनका कुछ भी पता नहीं चलता था। अब सीरियल है वो भी तैयार हो जाता है फटाफट कि जैसा माँ कह रही है वैसा मैं करने के लिए रेडी हूँ, मैं भी आज रात्रि बाहर नहीं जाऊंगा। और अब जो डोरिस है वो बचती है, वो थोड़ी हिचकिचाती है, परंतु फिर भी वह देखती है कंडीशन को और वो भी तैयार हो जाती है कि हाँ वो भी जैसा माँ कहती है वैसा ही करेगी। इस तरह से परिवार एक साथ बैठता है, टाइम स्पेंड करता है, खेलते हैं और फिर बच्चे वो खाना भी पकाते हैं और इस बात पर एग्री हो जाते हैं कि आगे से वो अपनी मदर की हेल्प हमेशा करेंगे। और माँ है वो अब अपने घर की बॉस बन जाती है, मालकिन बन जाती है। और ये सब किसकी हेल्प से हुआ? मिसेस फिट्जरैल्ड की हेल्प से, जो कि एक बहुत ही बोल्ड लेडी थी। अब स्टूडेंट्स, इस स्टोरी में हमने देखा कि एक लेडी घर के लिए कितना करती है और घर के सदस्य उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं। तो यहाँ से हमें राइटर क्या मैसेज देना चाहता है, या ये स्टोरी हमें क्या मैसेज देना चाहती है? वी शुड टेक केयर ऑफ एवरी मेंबर इन आवर फैमिली। वी शुड नॉट नेग्लेक्ट anyone in the family. It may be our mother, our father or any other. Students, I hope this chapter is clear to you. Thank you.